Hello students, we are continuing holding company accounts. So in this lecture we will discuss adjustment relating to uniform accounting policy. So let us say what is meant by uniform accounting policy. So in this case you are given that like there are two companies, one is holding company which is denoted by H and second is subsidiary company. So sometimes these companies follow different accounting policies. So these two companies they follow different accounting policies, or we can say that accounting procedures are different. So what can be major differences in these balance sheets of H and S? Number one difference may be related with so stock valuation is as per different method. For example, holding company is valuing its stock as per weighted average method, and subsidiary company is determining value of stock as per FIFO method. So another possibility is about depreciation also. So depreciation on assets. So one company following straight line method, which is called SLM, and the second company following the WDV method. Or in case of depreciation for similar type of assets, there is a possibility that rate of depreciation may be different. So rate of depreciation is different. So in this case, what is our objective? So while preparing consolidated balance sheet, so first of all, balance sheet of two companies should be as per same accounting policy. It means our requirement is for consolidation purpose, the balance sheets of two companies so should be as per so same accounting policies. इट मीन्स दोनों कंपनी को सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। अब यदि उनकी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं तो उस केस में आपको सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट को रिवाइज करना पड़ेगा एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी विच आर फॉलोड बाय होल्डिंग कंपनी। सो इट मीन्स इफ टू कंपनीज आर होल्डिंग एंड सब्सिडरी so are following different accounting policies. So in that case, we have to adjust balance sheet of subsidiary company as per accounting policy followed by holding company. So it means in that case we have to adjust balance sheet of subsidiary company which is S Limited as per accounting policies so which are followed by H company. H means our holding company. Adjust means, or we can say that we have to prepare revised balance sheet of a subsidiary company. So adjustment means we have to prepare revised balance sheet of a subsidiary company. So after that we can prepare consolidation. So let us see one full example how to prepare adjusted balance sheet of subsidiary as per same accounting policy, and how to prepare consolidated balance sheet. Let us discuss one full example based on uniform accounting policy. So example number is 15. इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है The following are balance sheets of A Limited and B Limited for the years ended 2021 and 2022. तो बैलेंस शीट आपको दी है ए और बी की 2 सालों के लिए हैं। शेयर होल्डर फंड्स हैं, लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल हैं, रिजर्व एंड सरप्लस हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, और एसेट साइड में आपके पास हैं फिक्स्ड एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं। करंट एसेट्स में स्टॉक लेटर, प्री पेड एक्सपेंसेस एंड कैश है टू बैंक। ये अमाउंट्स आपको मेंशन किए हैं मेनली। अब आपको मेंशन किया है कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ए एक्वायर्ड 60% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2022। तो पहले आप देखिए आपको ना बैलेंस शीट दी है और 2 ईयर्स, उसमें कैलेंडर ईयर चल रहा है, वन इज 2021 एंड वन इज 2022। इसमें जब आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है 2022, इनका बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर 1 जनवरी 2022। सो ए ने परचेज किए हैं शेयर्स ऑफ बी कंपनी जिसे ये 60%।
एक मीन्स ए इज होल्डिंग कंपनी, बी इज सब्सिडरी। तो अब जो बी के प्रॉफिट्स आएंगे आपको किस 31 दिसंबर 2021 वो आपके बन जाएंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, विच आर आल्सो कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट से। और जो करंट ईयर के प्रॉफिट्स होंगे 2022 के वो बन जाएंगे आपके रेवेन्यू प्रॉफिट से। फिर आपको देखो मेंशन किया है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। ए वैल्यूड स्टॉक ऑन वेटेड एवरेज बेसिस वाइल बी वैल्यूड स्टॉक ऑन फीफो बेसिस। अब स्टॉक की पॉलिसी देखो उसमें डिफरेंट है। So let us see A and B. Which policy we are following? A is following weighted average method and B is following FIFO method. तो मीन्स अब ए होल्डिंग कंपनी है तो हमें बी की बैलेंस शीट को एडजस्ट करना पड़ेगा एज पर वेटेड एवरेज मेथड फॉर स्टॉक वैल्यूएशन। तो उसके लिए देखो आपको मेंशन किया है टू ब्रिंग बी इज लिमिटेड वैल्यू इन लाइन विद दोज ऑफ ए लिमिटेड इट्स वैल्यू इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस बैक। अब हमने बी के स्टॉक को एडजस्ट करना है तो उसके लिए आपको रिड्यूस करना है बी का स्टॉक बाई 12,000 एट द एंड ऑफ 2021 एंड 34,000 एट द एंड ऑफ 2022। उससे फिर इसका जो स्टॉक है वो एज पर वेटेड एवरेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड ये दोनों कंपनी फॉलो कर रही है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, बट ए चार्जेज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। पर अब आपको देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में डिफरेंस दिया है, तो अब जिसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हमें मेंशन किया है। ए का रेट है 10% पर एनम, बी का देखो आप कैलकुलेट कीजिए। अगर देखो बैलेंस शीट में मेंशन किया है, ए की बैलेंस शीट में फिक्स एसएससी कॉस्ट है 230, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 23, इसमें ये है 10%। अब जो बी है, बी की बुक्स में हमें फर्स्ट ईयर में मेंशन किया है जो आपकी फिक्स एसेट्स हैं उसकी कॉस्ट है 320, डेप्रिसिएशन है 48। तो इसका रेट आप कैलकुलेट कीजिए, जिसे 48 डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की है ऑन 320। तो दिस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कमिंग 4800 डिवाइडेड बाय 320, 15%। तो ऐसे नेक्स्ट ईयर में भी आप देखेंगे फिर आपकी टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 96, लेकिन कितना इंक्रीज आ रहा है 96 माइनस 48, किसी अगेन 48, सो इस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15%। तो इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा एज पर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ होल्डिंग कंपनी। फिर एक आपको एडजस्टमेंट दी है बी लिमिटेड डिडक्ट्स 1% फ्रॉम क्रेडिट डेटर्स एज ए जनरल प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स बट नॉट ए लिमिटेड। पर एक डिफरेंस आ रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स। तो बी ने 1% प्रोविजन क्रिएट किया है और ए ने कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं किया है। तो इट मीन्स अब आपकी जो बी की बुक्स में डेटर्स हैं ये हमारे अपीयर हो रहे हैं एट द रेट ऑफ 99%। तो इसका जो प्रोविजन है वो हम एड बैक कर देंगे सो दैट डेटर्स कम एट 100% वैल्यू। फिर एक आपको मेंशन किया है एडजस्टमेंट प्रीवियस एक्सपेंसेस इन बी लिमिटेड इंक्लूड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर कैरिड फॉरवर्ड ऑफ 60,000 इन 21 and 30,000 in 22 being part of initial advertising of 90,000 in 2021 which is being written off over 3 years। तो एक हमें आइटम दी है प्रीपेड एक्सपेंस, इसमें एक एक्सपेंस है आपका एडवर्टाइजमेंट, ये आपने किया है 90,000 का 2021 के ईयर में, और इस 90,000 को बी कंपनी राइट ऑफ कर रही है 3 सालों में, इट मीन्स 30,000 पर एनम इज रिटर्न ऑफ। But they are saying that similar expenditure in A Limited has been fully written off in the year 2021। पर A ने इसको fully write off कर दिया है 100% written off in current year। Current year means when this expenditure is incurred। So restate the balance sheet of B Limited on 31st December and prepare consolidated balance sheet on 31st December 2022। इसमें देखो अब आपकी डिफरेंट पॉलिसी आ गई हैं तो इनको एडजस्ट करके हम बी की पहले बनाते हैं रिवाइज बैलेंस शीट, और दोनों सालों की बनेगी 2021 एंड 2022। लेट अस शो रिवाइज बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड। तो दिस ये एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज सो विच आर फॉलोड बाय इट्स होल्डिंग कंपनी विच इज ए लिमिटेड। तो ये देखो आपको बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल भी है, सो लेट अस शो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। तो ईयर्स हैं आपके पास 2021 2022। तो लेट अस स्टार्ट विद एसेट साइड में ही हमारी चेंजेस आ रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास हैं फिक्स्ड एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स, इसमें की है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नॉन करंट एसेट्स देखो आपको पीपीई दे रखी है, किसी जाकर कॉस्ट
तो उसकी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखी है 15% के बेस पर। अब हम कैलकुलेट करेंगे 10% लेस डेप्रिसिएशन, ये एक्यूमुलेटेड है एट द रेट ऑफ 10%। तो आप देखेंगे देखो कॉस्ट हमारी सेम है दोनों सालों में 320। तो इस साल डेप्रिसिएशन 10% 32 बन जाएगी। तो बैलेंस शीट में जब हम एसेट को कॉस्ट पे शो करते हैं तो डेप्रिसिएशन हमारी एक्यूमुलेट होती रहती है। तो नेक्स्ट ईयर में हमारी 32 और चार्ज होगी, 32 प्लस 32 ये 64 हो जाएगी। इससे आपकी नई वैल्यू आ जाएगी एसेट की, जिसे 320 माइनस 32 288। और नेक्स्ट ईयर है आपकी 256। फिर बी की बुक्स में है इन्वेस्टमेंट्स इसने परचेज की हैं, इन्वेस्टमेंट्स आपको दी हैं। फर्स्ट ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सेकंड ईयर में हमारे पास है 400 की इन्वेस्टमेंट। फिर आपके पास है करंट एसेट्स, उसमें आपको मेंशन किया है स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेज एंड कैश एट बैंक। अगर कुछ स्टॉक की वैल्यू को हमने चेंज करना है तो उसमें आपको मेंशन की थी एडजस्टमेंट कि स्टॉक को आपने रिड्यूस करना है 2021 में 12,000 से यानी 34 से। तो वो हमारे पास है बुक्स में 597 माइनस लगो 12 जिसे 585। अब ये नई वैल्यू आ जाएगी स्टॉक की। तो नेक्स्ट ईयर में स्टॉक की वैल्यू है हमारी बुक्स में 742, इसमें से माइनस करो आप 34,000 माइनस 34, दिस विल बी 708। डेटर्स में से हमने 1% प्रोविजन ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, तो उसको देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे डेटर से। अब जो डेटर्स की वैल्यू दी है आपको इसमें यह है 594। तो ये हमारी 99% की वैल्यू है और हमें चाहिए 100% की, क्योंकि 1% प्रोविजन हमने ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। सो किसे 594 डिवाइडेड बाई 99% 600। नेक्स्ट ईयर में है डेटर्स आपके 891, तो किसी आल्सो एट 99% इंटू 100। सो 891 डिवाइडेड बाई 99% जिसकी कमी 900। कुछ तरीके से डेटर्स में प्रोविजन हमारा ऐड बैक हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो आपके पास है प्रीपेड एक्सपेंसेस 7248, पर इसमें हमारा ना एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड है, उसके एडजस्टमेंट देखते हैं। देखो आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया है 2021 में और 2022 में। तो इस साल हमने एक्सपेंडिचर किया था 90,000 का। इसको फिर 3 सालों में हम राइट ऑफ कर रहे हैं। तो देखिए अब 3 से डिवाइड करेंगे, तो आप देखिए कितना राइट ऑफ किया हमने। तो इट मीन्स 30 यहाँ राइट ऑफ हो गया है, 30 नेक्स्ट ईयर फिर राइट ऑफ हो जाएगा आपका। तो आप देखो बैलेंस शीट में अब कितनी वैल्यू है इसकी राइट ऑफ होने के बाद। तो 2021 में 90 का एक्सपेंडिचर किया जिसमें से 30 राइट ऑफ हो गया, इट मीन्स 60 का बैलेंस अभी भी हमारी बैलेंस शीट में है। नेक्स्ट ईयर में 60 में से 30 और राइट ऑफ हो गया, तो 30 का बैलेंस हमारा इंक्लूड है। तो ये जो अमाउंट है ये इंक्लूड है प्रीपेड एक्सपेंडिचर में। बट ए कंपनी 100% उसी साल राइट ऑफ कर रही है। तो देखिए अब इसको 100% राइट ऑफ करते हैं इसी साल में, एक में फिर ये जो हमारी आइटम है एसेट प्रीपेड वो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, जो 2021 का प्रीपेड एक्सपेंस है उसमें से 60 माइनस कर दो। हमें दिया है यहाँ पर 72 माइनस 60, तो ये रह जाएगा 12,000। फिर आपको मेंशन किया है तो फिगर जो है ना आपको ये चल रहे हैं ₹1000 में। फिर अब देखिए नेक्स्ट में आप 30,000 और माइनस कर दो। यहाँ पर आपको दिया है अब 48, उसमें 30 माइनस से आपका बैलेंस रहेगा 18,000। तो इस तरीके से देखो मैंने डेप्रिसिएशन एडजस्ट करके, स्टॉक एडजस्ट करके, डेटर्स एडजस्ट करके, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके एडजस्ट हो गए। तो 4 एडजस्टमेंट की थी, चारों हमारी एडजस्ट हो गई हैं। कैश बैंक आपका सेम रहेगा 51 एंड 3। अब आप कैलकुलेट कीजिए टोटल। तो 9 में ये टोटल एसेट्स जिसे जो 288 प्लस 1185 प्लस 12 प्लस 51 1536। नेक्स्ट ईयर है आपका 256 प्लस 400 656 प्लस 708 प्लस 921 टोटली 2285। सो नाउ लेट अस सी अवर लायबिलिटी साइड। तो उसमें देखिए आपको मेंशन किया है सबसे पहले है आपका शेयर कैपिटल, तो किसी जो 500 ये आपका सेम है दोनों सालों में। फिर आपको मेंशन किया है रेवेन्यू रिजर्व्स, अंदर हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस रेवेन्यू रिजर्व्स। बस सिर्फ एक ही आइटम की है आपको, इसमें इसी में हमारा P&L इंक्लूड है। तो ये हम लेंगे बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि अब ये प्रॉफिट आपका करेक्ट हो जाएगा जिसे जो बैलेंस। फिर आपको दिए हैं करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स हैं, देन वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट एंड जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो इनके ऊपर आप देखेंगे कोई इफेक्ट नहीं है, क्रेडिटर्स आपके सेम रहेंगे 490 494।
Then we have overdraft, this is 170, and then it is provision for taxation 310 and 430. अब टोटल एसेट्स में से आप टोटल लाइबिलिटी माइनस कीजिए, रेवेन्यू रिजर्व आपको आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर. So let us see how much it is, 1536 and 2285. So 1536 minus this is 800 plus 5, 1300. This is 236. This is your balancing figure. Then 2285 minus all these items, this is coming 691. अब इस तरीके से जो सब्सिडरी कंपनी है बी लिमिटेड, उसकी जो प्रॉफिट्स हैं ये हमारे रिवाइज हो गए. अब आप देखिए आपकी गेटो एक्विजिशन क्या थी, वो थी हमारी 1 जनवरी 2022, लेकिन उससे पहले जो प्रॉफिट है 236, ये हमारा बन गया प्री एक्विजिशन, और जो डिफरेंस आएगा वो हमारा बन जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट. तो मेन पॉइंट क्या है, आपको करना है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. उसके लिए स्टार्ट करते हैं. आपको ए का इंटरेस्ट दे ही रखा है 60% है. अब देखिए आपको मेंशन किया है एनी शेयर्स एक्वायर किए हैं बी के एज ऑन 1 जनवरी 2022. तो करंट ईयर इज आल्सो दिस इज 2022. तो इस ईयर के एंड में आपको प्रिपेयर करनी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. ये बन गई आपकी गेटो एक्विजिशन. 2022 का जो भी प्रॉफिट होगा वो बन जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट. और ए ने एक्वायर किए हैं देखिए 60% शेयर्स ऑफ बी, इट मीन्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 40%. तो सबसे पहले बनाते हैं वर्किंग नोट हम, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ बी कंपनी विच इज बी लिमिटेड. इसमें सिंपल है, कोई ज़्यादा एडजस्टमेंट्स है नहीं. अब आपको पहले मेंशन करना है इक्विटी. सो एज ऑन एक्विजिशन डेट, उसमें 2 आइटम्स आएंगे आपके, शेयर कैपिटल एंड कैपिटल प्रॉफिट्स, यानी कि इक्विटी आफ्टर एक्विजिशन जिसका नाम है रेवेन्यू प्रॉफिट्स. तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज शेयर कैपिटल. तो फिगर्स रुपीज़ में ले लेते हैं. अभी आपको मेंशन किया है 5 लाख रुपीज़ ये शेयर कैपिटल. फिर प्रॉफिट देखो जो आपने कैलकुलेट किए हैं फॉर द ईयर 2021 अप टू दैट डेट, तो जिसे 236 है, तो ये बन जाएगा कैपिटल प्रॉफिट, इट मीन्स रेवेन्यू रिजर्व. तो दिस इज अप टू 2021, दिस इज कैपिटल प्रॉफिट. सो 2,36,000. फिर आपको देखना है करंट ईयर में कितना प्रॉफिट आपने अर्न किया है, दिस इज रेवेन्यू प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट. अब इस साल के एंड में बैलेंस शीट में हमारा रेवेन्यू रिजर्व आ रहा है 691. तो दिस विल बी 691,000 और माइनस कर लीजिए 236, तो बैलेंस हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा. दिस इज 4,55,000. So it means now we get to total, so equity share capital 5 lakh, so 236,000 and 455,000. So what is A share, इसमें आप देखेंगे जिसमें A का शेयर है 60%, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसे जो 40%. तो 60% के लिए 3 लाख एंड 2 lakhs इन 236, 60% 141,600, 40% 94,400, यानी 455 इंटू 60% 273,000, बैलेंस ही 182,000. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कंसोलिडेटेड P&L एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट. तो लेके से फर्स्ट ऑफ ऑल माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखो आपका कैलकुलेट हो आ रहा है. माइनॉरिटी इंटरेस्ट इट विल इंक्लूड शेयर कैपिटल प्लस शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट प्लस शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट. इन तीनों को ऐड कीजिए आप. 182,000 प्लस 94,400 प्लस 2 lakhs, जिसे 476,400. फिर आप चेक कर सकते हैं बट कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिजर्व्स, दिस इज आल्सो सिंपल. तो अब देखिए होल्डिंग कंपनी के रेवेन्यू रिजर्व्स हैं इस साल के, जिसे गिवन 558,000. तो आप लीजिए होल्डिंग का कितना बैलेंस है 558, उसमें ऐड कर दो शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी 273. तो दिस विल बी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिजर्व 831,000. अब आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल और कैपिटल रिजर्व. तो इनकी आप नंबरिंग कर लीजिए वर्किंग नोट से. नंबर फर्स्ट की आपके ये स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड की लेटर से माइनॉरिटी इंटरेस्ट, थर्ड कीजिए कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिजर्व. तो फोर्थ कीजिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. लेटर से बची जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट,
तो दिस इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। तो अब देखिए होल्डिंग की बैलेंस शीट में आपको मिलेंगे 2,60,000, दिस इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर आप कंपेयर कीजिए, बल्कि ए शेयर इन इक्विटी, ए का कितना शेयर है इन इक्विटी ऑफ बी। तो उसमें हम देखें दो चीज़ें, ए का शेयर कैपिटल में प्लस शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स, जिसे कहा जो ए शेयर इन इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी। टोटल देखो बन रहा है 441,600। So since A share is more than cost of investment, this will be capital reserve. So this minus this one. So 181,600 is the capital reserve. So now let us prepare a consolidated balance sheet. So now we are preparing consolidated balance sheet of A Limited and B Limited. And this is as on 31st December 2022. So current year आपका है कैलेंडर ईयर 2022. तो फर्स्ट लेट अस शो इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें सबसे पहले है देखिए आपका शेयर होल्डर फंड से। इसमें आपके आइटम्स हैं, नंबर 1 शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट आइटम है ये शेयर कैपिटल, जिसका आप मेंशन कीजिए नोट नंबर, डिटेल्स इन फाइनल अमाउंट इन रुपीज। तो शेयर कैपिटल ये गिवन ऑफ ए कंपनी, जिसे जो 4 लाख शेयर कैपिटल is 4 lakh. Then we have consolidated revenue reserves. ये अपनी कैलकुलेट किए हैं एज पर वर्किंग नोट नंबर 3, अमाउंट इज 831,000। फिर आपने कैलकुलेट किया कैपिटल रिजर्व। सो दिस इज एज पर वर्किंग नोट नंबर 4, अमाउंट इज कमिंग 181,600। सो दीज आर शेयर होल्डर फंड्स। देन वी हैव माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसको आपने सेपरेटली शो करना है। सो दिस वी हैव कैलकुलेटेड एज पर वर्किंग नोट नंबर 2 476,400। देन वी आर गिवन करंट लायबिलिटीज। इसमें आइटम्स हैं आपकी, तो किसी जबर और एक आपको देखो होल्डिंग की बुक्स में किया है कैपिटल रिजर्व पहले से किया 70,000। तो इट मीन्स कैपिटल रिजर्व आप ऐड कर लीजिए इसमें 181 प्लस 70,000। तो टोटल विल बिकम प्लस 70,000। ये होल्डिंग की बुक्स में पहले से कुछ बैलेंस दे रखा है आपको। सो दिस विल बिकम 251,600। तो जैसे ये 251,600, ये टोटल बन जाएगा आपका 251,600। अब करंट लायबिलिटीज हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्रेडिटर्स, ये आप ऐड कीजिए ए और बी के। होल्डिंग के क्रेडिटर्स हैं 607,000 और जो सब्सिडरी है उसमें क्रेडिटर्स हैं आपके 494,000, जिसे 1101। सो देन वी हैव ओवरड्राफ्ट, दिस इज ओनली इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, दिस इज 1,70,000। देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी आप दोनों का ऐड कीजिए, होल्डिंग सब्सिडरी। होल्डिंग का है देखो 3,20,000 करंट ईयर, प्लस सब्सिडरी है 4,30,000, टोटल 7,50,000। सो दिस विल बी अवर टोटल करंट लायबिलिटीज 11,01,000 प्लस 1,70,000 प्लस 7,50,000, 20,21। And let us say what are our shareholder funds, 4 plus 8, 12,31,000 plus 251,600. This is coming 14,82,600. So total liabilities are coming plus 476,400 plus 21,000. This is coming 39,80,000. नेक्स्ट आप शो कर सकते हैं बता रहे एसेट्स। तो एसेट्स हम शो कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नॉन करंट एसेट्स, जिसमें आपके पास है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसकी आप WBV ले लीजिए, आपको मेंशन की है होल्डिंग कंपनी के बुक्स में है करंट ईयर में, जैसे जो 1,84,000, तो ये आपको अमाउंट दिया है 184, और सब्सिडरी की बैलेंस शीट में है जिसे जो 256, जिसमें भी टोटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 184 प्लस 256, 4,40,000। फिर एक आपको दिए इन्वेस्टमेंट्स इन बुक्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। जो होल्डिंग की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तो एलिमिनेट हो गई हैं आपकी, सब्सिडरी की बुक्स में है 4 लाख, तो किसी टोटल नॉन करंट एसेट्स है 8,240। फिर आपके पास हैं करंट एसेट्स, इसमें आपको मेंशन किया है स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेज एंड कैश एट बैंक।
तो कुछ स्टॉक की वैल्यू है 725, होल्डिंग की बुक्स में है, सब्सिडरी की बुक्स में है। अब जो स्टॉक आपने कैलकुलेट किया रिवाइज 708, तो 725 प्लस 708 टोटल इज 1433। डेटर्स हैं देखिए आप 740, सब्सिडरी बुक्स में 900, 1640, प्री पेड एक्सपेंसिज हैं 14,000, सब्सिडरी की बुक्स में आपके 18, इसे कमिंग 32,000। बैंक बैलेंस है 32, सब्सिडरी की बैलेंस शीट में है 3, जिसे 35। तो टोटल करंट एसेट्स ईयर कमिंग 31,40,000। तो टोटल एसेट्स आर कमिंग 39,80,000। दिस इज अवर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 3980, 3980। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज की एडजस्टमेंट, हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बाय फॉलोइंग सेम अकाउंटिंग पॉलिसी विद एग्जांपल। फर्दर टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड यू कैन रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।